म्यूट कर लो तो उधर से आवाज आ रही है। ओके सर। ओके, जस्ट 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ज्वाइन करके उसको अलाउ करने के बाद हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे टूटी क्लास। ओके सर। ओके सर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो भी ज्वाइन करेगा उसको अलाउ करते जाएंगे। हेलो हेलो सर, अब आवाज आ रही है? या सर। So just we start, and if a student are come, then we will allow him and just continue the class. Okay. So just in the previous class, you were present or absent? In the previous class, you were present in the previous class. यस सर। Okay. So we सर are, सिग्नल बता रहे थे ना। yeah, some basic information of signal and classification of यस सर। some types of signal. So just we continue that classification of signal. Since some ओके signal are we are not discussed in the last class, so just we try to complete that one and then further move to the system classification. Okay, so I have already defined the system, but their classification we will discuss here after some times. So just in the previous class we have, I think, discussed the energy signal, power signal, and even and odd signal. Am I right? So just today we continue that part and discuss about the deterministic and random signal. Okay. So just share the screen and then yeah. So we have already discussed the deterministic, energy signal, power signal, and even and odd signal in the last class. Okay. So just continue that part and
The next classification of the signal is your deterministic signal and random signal. So what is the deterministic signal? Deterministic signal is nothing but the signal about which there is no uncertainty with respect to the value at time. Okay, that means that signal at a particular time when it's occur, there is no uncertainty. ये आउटपुट तुमको बेसिकली मिलेगा ही, ठीक है, जिस समय एट ए पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ऑफ टाइम पे ये कोई अनसर्टेन नहीं रहेगा, ठीक है, ये फिक्स्ड जो भी तुम्हारा एम्पलीट्यूड है या जो भी सिग्नल का वैल्यू है वो तुमको पर्टिकुलर टाइम पे मिलेगा, दैट इज नोन एज द डिटरमिनिस्टिक सिग्नल. ओके, there is no uncertainty with respect to its value of time 2 3 or after some time 2 hours 3 hours whatever may be. So that अभी यदि कोई पर्टिकुलर वैल्यू सिग्नल का मिल रहा है वो कुछ टाइम के बाद भी वही वैल्यू मिलेगा. ओके, टाइम पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ द टाइम. So that is known as the deterministic signal and their notation as the maybe nothing but the it may be also defined as the signal may be modeled as a completely specified function of the time. ये टाइम पे प्योरली स्पेसिफाइड रहेगा, ठीक है, कोई अनसर्टेन नहीं रहेगा कि इतना होगा इतना होगा. देयर इज फिक्स सर्टेन वैल्यू. सो यू मे बी सी फ्रॉम दिस इक्वेशन xt is cos square 2 pi t. Okay, so when you find out the value of xt at a particular value of time, then you will get a certain value of the signal, that means xt. Okay, there is no uncertainty because this function is defined at a time t. ठीक है, so xt is cos square 2 pi t. तो किसी भी वैल्यू के लिए t के लिए ये फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है. so this type of signal is known as the deterministic signal. रैंडम सिग्नल इसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट, ठीक है, किसी तरह का. ये रैंडम सिग्नल इज सिग्नल अबाउट विच देयर इज कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इसी तरह का शेप आएगा आफ्टर सम टाइम और बिफोर इट्स अकर. जस्ट सिमिलर टू लाइक दिस वन ए डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल नॉइज जनरेटेड इन एम्पलीफायर ऑफ ए रेडियो और टीवी रिसीवर. ओके, सो एग्जांपल ऑफ दिस type of signal, the electrical noise whatever is generated in the radio receiver or TV receiver, that is your particular example for this signal. So classification of signal is completed here. Now next move towards the introduction to the system. So I have already basically defined the system, and again here we just elaborate the system. And next part to move the classification of the system. So just how we can define a particular system. System हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग यदि यूज करते हैं तो उससे हम लोग क्या फायदा होता है? सिस्टम आर यूज टू प्रोसेस सिग्नल टू अलाउ मॉडिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन. मतलब कोई भी सिग्नल यदि है और किसी हम लोग फिक्स पर्टिकुलर सिस्टम से पास करते हैं तो एक्चुअली क्या होगा, आउटपुट सिग्नल को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं उस सिस्टम के पैरामीटर के थ्रू, ठीक है. दैट मींस सिस्टम आर यूज्ड टू प्रोसेस सिग्नल टू अलाउ मॉडिफिकेशन और देयर और एक्सट्रैक्शन. ये सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट और सम एल्गोरिथम दैट कंप्यूट्स द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द इनपुट सिग्नल. जैसे हम लोग आउटपुट सिग्नल जो हम लोग अचीव कर रहे हैं कोई फिक्स सिग्नल से, जैसे हम लोग एग्जांपल यदि बेसिकली देते हैं ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को यदि हम लोग सिग्नल सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल इनपुट वोल्टेज देते हैं, आउटपुट में भी हम लोग क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है.
लेकिन इनपुट सिग्नल और आउटपुट इनपुट वोल्टेज और आउटपुट सिग्नल में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस किसके कारण हो रहा है, वो पार्टिकुलर ट्रांसफार्मर के कारण। सो दैट ट्रांसफार्मर we may be considered as a system. So what we have modified just through transformer, level of the voltage, okay, level of the voltage, that means one value to another value. जैसे हम लोग वहां पे क्या, यदि 11 किलो वोल्ट यदि इनपुट दे रहे हैं डोमेस्टिक में, तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को कितना मिल रहा है, 11 किलो वोल्ट से हम लोग 430 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज में हम लोग को कितना मिल रहा है, 430 वोल्ट मिल रहा है। नहीं, 11 में वोल्टेज हम लोग कितना दिए, 11 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे जो लेवल वोल्टेज का ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ट्रांसफार्मर के कारण। सो ट्रांसफार्मर एक्ट लाइक एज ए सिस्टम, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या करें, आउटपुट सिग्नल को जस्ट मॉडिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सो यू मे बी कंसीडर ट्रांसफार्मर एज ए सिस्टम। सो इट क्लियर, हेलो, यस सर। या दैट किसी इसी तरह से तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, या जस्ट एग्जांपल ले सकते हो इन्वर्टर। इन्वर्टर में भी हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज लेवल को हम लोग, या ऑटो ट्रांसफार्मर, सबसे हम लोग क्या करें, इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, ओके। सो मे बी कंसीडर एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। So these are one or two example of the electrical system, and you may be something explain that a physical system consists of the interconnected of the different parameter. That means जैसे अभी हम ट्रांसफार्मर का बात किए, उसके बीच में और कोई इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, उसके बाद जो फाइनल हम लोग अचीव कर रहे हैं, जो आउटपुट सिग्नल हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज करेक्टाइज थ्रू दिस particular system, okay. So a physical system consists of interconnected component which are characterized by the input signal हम लोग क्या दे रहे हैं और आउटपुट सिग्नल उसका क्या आ रहा है। तो so the representation of the input signal and system and what you will get the value of output signal. So just like as a some block diagram, you may be represent xt represent the which quantity, input signal, okay, and yt is your आउटपुट सिग्नल। इसके बीच में क्या है, तुम्हारा सिस्टम है, कोई भी सिस्टम जो भी इंस्टॉल यहाँ पे किए हो तुम यूज कर रहे हैं, तो वाईटी जो है वो क्या होगा, वेरी करेगा कंपैरिजन टू किसके रेस्पेक्ट में वेरी, कोई पैरामीटर जो भी होगा सिस्टम का जो पैरामीटर होगा, और तुमको क्या मिलेगा, आउटपुट, दैट पैरामीटर वेरिएशन ऑपरेटर इनटू इनपुट सिग्नल। यदि हम लोग इसी चीज को क्लासिफाई करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं 11 किलो वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज हम लोग कितना मिल रहा है 430 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन याद है, नहीं, हेलो, हाँ सर। इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर में हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, टर्न्स रेशियो पे ना। जैसे हम लोग क्या रिलेशन क्या रखते हैं, V1 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय N2। तो यदि हम लोग नहीं, तो यदि वहां से हम लोग को आउटपुट निकालना रहेगा, तो क्या V1 यदि इनपुट वोल्टेज है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो से डिफाइन करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज, okay. So H is your operator, so that in case of transformer H is your nothing but the number of turns ratio, okay. So इसी तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम से हम लोग उसके पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इनपुट सिग्नल को वेरी कर सकते हैं, आउटपुट सिग्नल यू विल गेट एज ए डिजायर वैल्यू, ओके। कोई फिक्स सिस्टम का पैरामीटर चेंज करके हम लोग उसका आउटपुट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं।
this is the mainly definition of the system. Maybe system, maybe classification of system. Suppose that various type of system maybe take place in the market or maybe your surrounding environment. So maybe classified some system as a static or dynamic system. Okay. So first one is your static and dynamic system. Dynamic system. Okay. स्टैटिक सिस्टम को हम लोग मेमोरी लेस सिस्टम भी बोलते हैं. ओके, मे बी फाइंड आउट समवेयर स्टैटिक सिस्टम इज योर मेमोरी लेस एंड डायनेमिक सिस्टम इज योर मेमोरी. सो हाउ यू कैन जस्ट डिफाइन द स्टैटिक एंड डायनेमिक system. So a static system is said to be that type of system. Suppose that a system is said to be a static. One student comes, so just allow him. Yeah, so a system is a static. A system is a static. मेमोरी लेस दैट मीन्स क्या कि वो ना उसको कुछ भी ध्यान में नहीं है. मेमोरी लेस दैट मीन्स ना वो पास्ट में डिपेंड करेगा, याद रहेगा ना उसको, फ्यूचर का कुछ ध्यान रहेगा, किसी पार्टिकुलर टाइम पे ही वो डिफाइंड रहेगा. ठीक है, इनपुट सिग्नल जिस टाइम पे दे रहे हो सिस्टम में उसी टाइम में तुमको आउटपुट सिग्नल देगा, उसका पास्ट और फ्यूचर से कोई रिलेशन नहीं रहेगा. ओके, सो ये सिस्टम इज स्टैटिक if the output at time t, if the output at time t, कंटिन्यूअस में हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम t. और डिस्क्रीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्क्रीट में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से ना, स्मॉल n से. So just time t or n depends only on the input signal. Okay, depends only on the input signal. On the input signal. Okay, at time t or np. At टाइम t और n पे. दैट मीन्स इसको पास्ट और फ्यूचर से कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेशन नहीं है. ओके, सिमिलरली यदि इसका उल्टा हम लोग डिफाइन करते हैं डायनेमिक सिस्टम, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा पास्ट और फ्यूचर टाइम. ओके, सो इसका यदि हम लोग एग्जांपल देना चाहें, some student are okay. So the example of a static system is current flowing through a resistor. सिर्फ प्योर रेजिस्टर से यदि करंट फ्लो कर रहा है, दैट मींस रेजिस्टर इज योर स्टैटिक सिस्टम. ओके, सो करंट flowing through resistors. Through resistor. यहाँ पे सिस्टम कौन सा हो गया?
सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम रजिस्टर के थ्रू पास कराना है ना सिग्नल, सिस्टम क्या होगा, रजिस्टर। ओके, सो जस्ट करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, तो रजिस्टर जो रजिस्टर का वैल्यू रहेगा उसी पे डिपेंड करेगा करंट का वैल्यू। नहीं, यदि 10 ओम का रजिस्टर है और तुम 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो करंट का वैल्यू 1 एम्पियर ही होगा। ठीक है, रजिस्टर का यदि वैल्यू चेंज करोगे तो वही 10 वोल्ट वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें कुछ स्टोर नहीं रह रहा है कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग इंडक्टर का, तो उसमें इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल कैपेसिटर का लेते हैं तो उसमें कैपेसिटर का इनिशियल वैल्यू होता है। ओके, तो यहाँ पे ये पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जिस इंस्टेंट पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल जिसमें हम लोग चाह रहे हैं, दैट मीन्स इफ द आउटपुट एट ए टाइम टी पे हम लोग चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, इनपुट वोल्टेज जो सप्लाई दे रहे हैं रजिस्टर में उसी पे डिपेंड कर रहा है उस टाइम पे। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक सिस्टम। ओके, एंड ये सिस्टम इज सेड टू बी डायनेमिक इफ ये सिस्टम is set to सर be इसका dynamic। इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? उधर से थोड़ा सा म्यूट करो तुम लोग। सर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे सर? इक्वेशन में हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ, इसको यदि हम लोग एक सपोज करो कि इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं 10 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल सर्किट ड्रॉ हम लोग नहीं करते हैं, वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट, इसके पैरेलल में रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, बस पाथ कंप्लीट करिए। तो वही रेजिस्टर जो हम लोग बोलो सर हमको सिग्नल के अति में लिखना रहा, सिग्नल के टर्म में लिखना रहा, हाँ तो सिग्नल हम कैसे लिखेंगे? सिग्नल के टर्म वही चीज तो बोल रहे हैं कि सिग्नल आइदर में इलेक्ट्रिकल में यदि हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल में सिग्नल क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्या होगा, वोल्टेज होगा या करंट होगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे कोई हम लोग वोल्टेज सोर्स सपोज करो, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किए, इसके पैरेलल में हम लोग क्या किए, रजिस्टर कनेक्ट किए, ये रजिस्टर में क्या हो रहा है, हम लोग जो ये करंट जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इस क्या है, रजिस्टर। तो ये जो करंट है ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है, ये जो फ्लो कर रहा है वो किस पे, रजिस्टर पे ही डिपेंड कर रहा है जो इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगाए हैं। जो हम सर लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर इसको? सॉरी एक बार फिर से बोलो। सर मैथमेटिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे बोलने का तो ठीक है, बोल दिए कि प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैथमेटिकली अगर हमको इसको एक्सप्लेन करना रहा तो हम कैसे करेंगे? मान लिया जाए कोई बता दिया एक मिनट कोई। मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यदि एक इक्वेशन लिख रहे हैं, जस्ट एक मिनट, यदि 10 वोल्ट के अक्रॉस हम लोग दिए, ठीक है, यदि आईटी हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसमें, टेन वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किए हैं और 10 ओम रजिस्टर है। ठीक है, 10 ओम रजिस्टर है, तो इसके अक्रॉस हम लोग करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो दोनों यदि 10 वोल्ट है, इसको जस्ट यदि हम लोग लिखना चाह रहे हैं, रजिस्टर आर, यहाँ पे कितना डिपेंड कर रहा है, यदि 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 10,
10 divided by 10, that means equal to 1. यही ना रेजिस्टर के अक्रॉस VT इक्वल टू IR। लेकिन इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज इक्वेशन क्या लिखते हैं? इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इक्वेशन क्या लिखते हैं? इंडक्टर के अक्रॉस लिखते हैं IXL 1 by L DI by DT। नहीं, is it 1 by L DI by DT प्लस इनिशियल करंट I0 प्लस। देखो yes sir इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज का इक्वेशन क्या लिखते हैं, ध्यान में है? VL इक्वल टू 1 by L DI by DT प्लस इनिशियल वैल्यू, दैट मींस I0 जो लिखते हैं I प्लस 0 सफिक्स में दे करके, तो वो क्या एट द टाइम ऑफ 0 उसमें कितना करंट स्टोर है या एनर्जी स्टोर है, ठीक है? उसी तरीके से कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग क्या लिखते हैं, कितना चार्ज उस पे एट टाइम टी पे 0 देखिए स्टोर है, दैट मींस वो वोल्टेज अपीयर करेगा उस समय। ये बेसिक इक्वेशन है इंडक्टर और कैपेसिटर का। नहीं तो सेम चीज वही आ जाएगा, एग्जांपल ऑफ डायनेमिक सिस्टम का इंडक्टर और कैपेसिटर। ओके, दैट मींस दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू। एट टाइम t इक्वल टू 0 यदि किसी कैपेसिटर का वैल्यू देखना ना, इंडक्टर का वैल्यू यदि हम लोग टाइम t इक्वल टू जब 0 कंसीडर करते हैं कि करंट 0 स्टोर है, तभी उसका सिर्फ हम लोग लिखते हैं वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इक्वल टू 1 by L DI by DT। ओके सर हाँ, स्टैटिक सिग्नल का वोल्टेज और करंट के अलावा और कोई सिग्नल का एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं स्टैटिक सिग्नल, यहाँ हम लोग बात क्या कर रहे हैं, सिस्टम का बात कर रहे हैं, स्टैटिक सिस्टम का। यहाँ पे सिस्टम का बात कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग सिग्नल पास कर रहे हैं। दैट मींस सिस्टम क्या है, रजिस्टर। अच्छा रजिस्टर ना, हाँ रजिस्टर। यहाँ पे हम लोग स्टैटिक सिग्नल का बात नहीं, सिग्नल का नहीं हो रहा है, बात हो रहा है सिस्टम का, जिसके थ्रू हम लोग सिग्नल को पास कर रहे हैं, करंट या वोल्टेज जो भी है, ठीक है? यदि हम लोग करंट सोर्स रहेगा तो करंट पास कर रहे हैं, ठीक है? जो वोल्टेज सोर्स है वोल्टेज को पास कर रहे हैं, करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिस्टम किसके थ्रू पास कर रहे हैं, ये रजिस्टर है। ओके, यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं। आर सिंपल सा बेसिक तो एलिमेंट है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ओके, तो जस्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सिस्टम का हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, ओके, जिसके थ्रू हम लोग सिग्नल को पास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रजिस्टर। सिमिलरली डायनेमिक सिस्टम का यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायनेमिक सिस्टम इज सेड टू पासेस थ्रू ए मेमोरी, जिसको हम लोग पहले बोले थे क्या, मेमोरी लेस स्टैटिक को, इसको मेमोरी भी बोलते हैं। दैट मींस कि ये पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। ओके, मेमोरी ऑफ इट्स इन आउटपुट सिग्नल ऑन द पास्ट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल। दैट मींस इनिशियल में करंट इंडक्टर के अक्रॉस या एनर्जी स्टोर है कि नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस यदि पास कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस चार्ज स्टोर है कि नहीं इनिशियल पे। सो दैट आर दी डायनेमिक सिस्टम। सो ये सिस्टम is said to passes memory if its output signal depends on past or future value of input।
Okay, depends on past and future value of input signal. Future value of its input signal. इनपुट सिग्नल, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वही सेम चीज, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. हेलो, हेलो, यस सर. हाँ आवाज आ रही है? यस सर. ओके, सो एग्जांपल इसका क्या आ जाएगा डायनेमिक सिस्टम का? इंडक्टर एंड कैपेसिटर. इंडक्टर एंड कैपेसिटर. कैपेसिटर. ओके, एंड नेक्स्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम. स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम. स्टेबल सिस्टम किसको बोलेंगे, अनस्टेबल सिस्टम किसको बोलेंगे? स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम. Stable system. Okay, so a system is said to be stable, said to be bounded input, bounded output. Okay, that means bounded input, bounded output is stable and only if every bounded input result in a bounded output. मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग जो भी बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं उसी के क्रॉसपोंडिंग यदि बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, दैट सिस्टम इज नोन एज द स्टेबल सिस्टम. ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक बाय द इनपुट एंड आउटपुट इज रिजल्ट इन ए बाउंडेड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. अदरवाइज यदि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये सिस्टम इज सेड टू बी बाउंडेड. ये सिस्टम is said to be bounded input bounded output, bounded hello. So just bounded input
In that bounded output, if हम got, then that will be known as the stable system. यदि हम लोग मतलब कहने का मतलब है कि किसी एक डिफाइंड रेंज तक ही हम लोग ऐसी कर सकते हैं ना, कि कोई पैरामीटर यदि हम लोग स्टेबल सिस्टम है तो उसके थ्रू ऐसा नहीं कि 10 बोल दिए तो ट्रांसफार्मर से हम लोग का एक बहुत ज्यादा आर्बिट्री वोल्टेज लेवल हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसका एक तो रेंज होता है ना, इस रेंज तक ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज डिफाइंड हियर बाउंडेड इनपुट। ओके, कि बाउंडेड इनपुट मतलब इनपुट को भी हम लोग इस रेंज से इस रेंज तक चेंज कर सकते हैं। 10 से 15 सपोज करो, उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट पैरामीटर चेंज करेगा। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ओके, and next one is your casual system, casual and non-casual system. So a system is said to be casual if the present value of output signal depends only on the present or past phase. सेम इसका उल्टा चीज आ जाएगा। ठीक है, कैजुअल सिस्टम के लिए, कैजुअल सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, इफ द present value of the output signal it depends only on the present or past value of the input signal page. Okay, and any practical system that operates in real time must essentially एक कैजुअल सिस्टम होगा। तो जस्ट इसी का हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट, बाउंडेड आउटपुट। इसको ब्रैकेट में तुम लोग यदि शॉर्ट टर्म में लिखोगे तो जस्ट कैपिटल बी कैपिटल ओ, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, इस टर्म में भी डिनोट कर सकते हो। ओके, बाउंडेड आउटपुट स्टेबल and only if every bounded input result in a bounded output। इसके कारण क्या होगा, रिजल्ट इन ए बाउंडेड आउटपुट। Otherwise it is said to be unstable। Otherwise it is said to be unstable। Unstable। Yeah. So these are the basic definition of the system and classification। Okay, so just here